Explorer class. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay. Now today we are going to recite surah, not recite, learn the first 5 ayats of Surah Al-Baqarah. Okay. Surah Al-Baqarah. Okay, let us see something about, let us introduce ourselves to Surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Now this is a simple introduction to Surah Al-Baqarah. Okay. Surah Al-Baqarah is the pinnacle of the Quran. It is called as the pinnacle of the Quran. यानी कि ज़रवा सनाम उसको अरबी में कहा जाता है, उर्दू में भी ज़रवा सनाम कहा जाता है. Sanamun, it is the pinnacle of the Quran, is Suratul Baqarah. व इन्ना शैताना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यदि इस हदीस इज मरफूअन और व मौकूफ. मरफू हदीस है ये from the सिलसिलतुल अस्सहीहा, हदीस नंबर 588. तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, द नरेटर ऑफ दिस हदीस इज अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु. तो ये फरमाते हैं कि इन्ना लिकुल्ली शैइन सनाम. इन्ना बेशक, indeed, without any doubt, surely, certainly, everything has a peak, has a sanam. Sanam is the peak. And the pinnacle of the Quran is Suratul Baqarah. व सनामुल कुरान, जैसे कि हर एक चीज का सनाम होता है, एक हाईएस्ट पीक होती है, जस्ट लाइक दैट कुरान का सनाम है सूरतुल बकरा. क्यों है इसको इस तरह कैसे कहा गया है? व इन्ना शैताना, इन फैक्ट, श्योरली, इंडीड, शैतान, इदा समिअ, जब वह सुनता है, ओके, शैतान जब सुनता है सूरतुल बकरा, व्हेन इट हियर द सूरतुल बकरा, तक यानी कि तुकरा खरज मिनल बैत, तो फौरन वो घर छोड़ के निकल भागता है. तो इन फैक्ट द डेविल अपॉन हियरिंग द recitation of Suratul Baqarah, the shaitan leaves that house where Suratul Baqarah is recited. So it is so important ayah. Okay, if you want to be blessed, all of us, we want to be blessed. So if you want to be blessed, to recite Suratul Fatiha, because reciting Suratul Baqarah is a blessing. Here again, this hadith is taken from Sahih Muslim. And reciting the Suratul Baqarah is a blessing, and leaving it, it is a cause of grief. बाई से हसरत होती है. इसका पढ़ना बरकत ले आता है, इसका छोड़ देना हसरत ले आता है. Okay, leaving it is the cause of grief, and the magicians cannot counter it. Magicians के पास इस सूरतुल बकरा का कोई तोड़ नहीं होता है. So these 2 ayats, that about the introduction of for the Suratul Baqarah. Okay. So if we want to live peacefully, all of us, we want to live peacefully. Peacefully जीना हम चाहते हैं, सुकून के साथ, आराम के साथ हम सब जीना चाहते हैं. हम सबों की यही ख्वाहिश है. If we want to live peacefully, what we have to do? We have to recite Surah Al-Baqarah. And if we do not make our homes, if we do not want to make our homes the graveyards, कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं, तो then again we have to recite Suratul Baqarah. Why we have to Suratul Baqarah? कि हमको अपने घरों को कब्रिस्तान नहीं बनाना है. कि अबू हुरैरा की ये हदीस मुबारक है कि इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे फरमाते हैं, इन्ना शैतान यनफिरु फर्र यफिरु, भाग जाना. Okay, it runs away. बेशक, indeed, shaitan will run away. Yeah, runs away min al-bayti, from the house, allazi, that which tuqra'u fihi Suratul Baqarah, from the in which Suratul Baqarah is recited. Here again, this hadith is hadith from Sahih Muslim, 780 is the number.
तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि हम अपने घरों को कब्रिस्तान नहीं बनाना है। हम में से कोई चाहता है कि हमारे घर कब्रिस्तान बन जाए? नहीं, कोई भी नहीं चाहता है। तो क्या करना चाहिए? व्हाट वी हैव टू डू? क्या अपने घरों को हमको ग्रेवयार्ड्स नहीं बनाना है? तो देन रिसाइट सूरतुल बकरा। एंड इफ यू वांट टू लिव पीसफुली, if we want help on the day of judgment, यौमुल क़यामा के दिन कोई हमारी हेल्प करे, कोई हमारी मदद को आ जाए, जबकि जिस दिन कोई कहीं से मदद नहीं की जाएगी, तो अगर हम ऐसे मौके पर, अपने मुश्किलात के मौके पर अगर हम मदद मांगना चाहते हैं, तो देन रिसाइट अगेन सूरतुल बकरा। व्हाई you have to recite in this dunya, not in hereafter. You have to recite Surah Al-Baqarah in this dunya. Because क्या है ये कि if you recite Surah Al-Baqarah in dunya, you will get yourself an intercessor. शफात करने वाली ये सूरत है। तो recite the Quran, for on the day of resurrection it will come as an intercessor. इंटरसेसर क्या होता है? शफात करने वाला, शाफई बनकर आता है। किन के लिए शाफी बन जाता है ये? जो दुनिया में सूरत अल-बकरा को रिसाइट किया करते थे। तो अनदर हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिसाइट द टू ब्राइट वंस। कौन से ये टू ब्राइट वंस? टू लाइट्स, टू ब्राइट वंस। The one is Al-Baqarah and another one is Suratul Al Imran. अगर ये दोनों सूरतें पढ़ेंगे तो ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन, यौमुल क़यामा के दिन, जिस दिन के हमारा हिसाब किताब होने वाला है, दे विल कम एज टू क्लाउड्स। दो सहाब की तरह आएंगे। सहाब अरबी में क्लाउड को कहते हैं। दो सहाब की तरह आएंगे, सहाबानी बनकर आएंगे, और टू शेड्स बनकर आएंगे, या टू लाइट्स बनकर आएंगे। तो सूरत बकरा को और आले इमरान को क्या कहा गया है? टू क्लाउड्स, टू शेड्स, टू नूर्स, और टू फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स की शक्ल में आएंगे। ओके, टू फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स इन रैंक्स प्लीडिंग फॉर दोज हु रिसाइट देम। और आकर क्या करते हैं? प्लीड करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर के इनको बख्श दीजिए, ओके, इनकी शफात कर दीजिए। इसलिए सूरतुल बकरा एंड आले इमरान, टू लाइट्स, टू ब्राइट वंस, इन अरबिक दे आर कॉल्ड एज अज़हरवैन। अज़हरवैन कहा जाता है, दो नूर वाली सूरत। अज़हरवैन, द ब्राइट वंस, टू ब्राइट वंस, अज़हरवैन इनको कहा जाता है। ओके ओके, क्या भी उतना काफी है? और भी कई सारे अहादीस मुबारक ही इसकी वर्चुअस क्वालिटीज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं उलमा इकराम, यानी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू हदीस और भी कई सारे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे। तब तब मैं एक या दो हदीस सुनाती रहूंगी, इसकी बुजुर्गी, इसके ब्यूटीफुल वर्चूज के बारे में, इसके डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटीज के बारे में बताती रहूंगी। Now it is time to learn Surah Al-Baqarah. अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें सब मिलकर। सूरत अल-बकरा को शुरू करने से पहले दुआ करें। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी। ए अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की बहार बना और सीने का नूर बना दे। ओ अल्लाह, make the Quran the spring of my heart, रबीअ क़ल्बी, spring of my heart बना दे, and take the light of my chest, और उसको क्या बना दे? And make, okay, this Quran the light of my chest. Once again, मेरे साथ रिपीट करें, मगर माइक म्यूट करके अपने आप से आप रिसाइट कर। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी
अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी। सबने दुआ मांगी। इस खूबसूरत दुआ के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं सूरतुल बकरा। ओके, सहाबा इकराम इस सूरत के पढ़ने वाले की बहुत इज्जत किया करते थे, बहुत तालीम दिया करते थे, ताज़ीम, इज्जत, रिस्पेक्ट दिया करते थे। और कि इस सूरत को जो whoever recite this surah, okay, at the time of recitation of this surah, फरिश्ते नाजिल, फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सकीनत नाजिल फरमाया करता है उन लोगों पर जो इस सूरत की तिलावत करते हैं। ओके, तो लोगों की अक़साम इसके बारे में सूरत अल-बक़रा में लोगों की अक़साम के बारे में बताया गया है। व्हाई दिस सूरा इज सो ग्रेट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज़ अज़-ज़हरावाइन। तमाम इंसानों को इसमें बार-बार खिताब किया गया है। सूरत अल-बक़रा अकॉर्डिंग टू मेनी उलमा इकराम, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइव्स कहा गया है। हमारी जिंदगियों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, उस वो सारे चीज़ें इन्हें कि हुस्न अखलाक कैसे हो, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा कैरेक्टर वगैरह वगैरह कैसे हो, इसको इस सूरह में डाला गया है। दैट्स व्हाई दिस सूरह इज कॉल्ड एज द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइव्स, क्योंकि इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ। एंड द फर्स्ट यानी कि सेकेंड सूरह, फर्स्ट सूरह में हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, we do dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and the best dua in Surah Al-Fatiha is ihdina siratal mustaqim। तो सिरातल मुस्तकीम दुआ मांगने के इवज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो इहदिना क्या है, व्हाट इज दैट गाइडेंस, टू whom the guidance is, etc सब कुछ बताया है। These are some of the points के in Surah Al-Baqarah what we will going to read about Ibrahim alayhi salam, the story of Ibrahim alayhi salam, the story of Bani Israel, उनके क्या क्या एक्सीडेंट्स थे, इवेंट्स थे, इंसिडेंट्स थे वगैरह वगैरह। और इसी सूरे में द चेंजिंग ऑफ द किबला के बारे में आता है। हारूत और मारूत दो फरिश्तों के बारे में आता है। यू विल फाइंड आल्सो द स्टोरी ऑफ तालूत एंड जालूत एंड मेनी द पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में इसका जिक्र हुआ है। एंड आल्सो हमारी आइली जिंदगी यानी कि हमारी फैमिली लाइफ कैसे हो, इसके मुतालिक देयर आर मेनी कमांडमेंट। ओके, तो ना that is the introduction to Surah Al-Baqarah. Now coming towards the ayats. अलिफ लाम मीम, पहली आयत है अलिफ लाम मीम। अब मेरा ये है कि तर्जुमा सुनते हुए, याद करते हुए आपको व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज योर रिस्पांसिबिलिटी, कि लिसन केयरफुली टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, अरबिक वर्ड्स, कुरानिक वर्ड्स, यानी कि अरबिक कुरानिक वर्ड्स एंड उर्दू वर्ड्स आल्सो। जब मैं कहती हूँ उर्दू में भी ये कहती हूँ कि आप सब उर्दू दान हजरात हैं, उर्दू में बातचीत करने वाले हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, आई नो, मगर अपने लहजे को, अपनी उर्दू को खूबसूरत बनाना है, अच्छी बनाना है, तो यू हैव टू लिसन टू दोज वर्ड्स आल्सो along with the Quranic words. Okay. Alif Lam Mim, this is ayah number 1 of Surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. कैसे मैंने पढ़ा, तोड़कर अलग अलग करके पढ़ा। अलिफ लाम मीम, क्या पढ़ा मैंने, अलिफ लाम मीम। तो ये जो लेटर्स हैं इनको कहा जाता है हुरूफुल मुक़त्तआत। क्या कहा जाता है इनको, हुरूफुल मुक़त्तआत कहा जाता है। और इनका हमको इतना ही जानना काफी है कि these are one of the miracles of the Quran, and none but Allah subhanahu wa ta'ala alone knows their meanings. कई उलमा इकराम ये भी ऐड करते हैं कि अल्लाह एंड हिज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम knows the best, वल्लाहु आलम। तो इनको disjointed letters कहा जाता है। These letters हरूफुल मुक़त्तआ, they are called as disjointed letters। ओके, मिराकुलस लेटर्स और भी इसके कई सारे नाम हैं, आज इतना काफी है। आयत नंबर 2,
ذلك, see here, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ये है आयत नंबर 2 ऑफ सूरत अल बकरा। लफ्जी तर्जुमा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ आए हम। ذلك that, ذلك that मतलब ये और वो। अब ذلك का मीनिंग दैट है, मगर ट्रांसलेशन में यू विल फाइंड ओनली this book. So ذلك का मीनिंग, the meaning of ذلك is that, and hada is another pointer. So the meaning of haza is this. ذلك that, hada this. Okay. Al-Kitabu. Al-Kitab क्या है? The book. Al-Kitab the book. किताब, यह किताब, ذلك यह, अल-किताबु किताब। ला ला नो, ला नो नहीं। रैब 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 का मीनिंग डाउट, रैब डाउट, कोई शक नहीं, कोई शक। ही ही मतलब इन, ही इज इट, इन इट, ओके, इन इट। हुदन ये हिदायत है, हुदन इज द गाइडेंस, a guidance. For whom it is guidance? Li, for, फिर again for, preposition, okay. Fi is again preposition in, li preposition for, li for, के लिए, उर्दू में के लिए, हिदायत है के लिए, किसके लिए? मुत्तकीन, मुत्तकीन, मुत्तकीन नहीं है, मुत्तकीन। जब शब्द आती है तो यू हैव टू रीड बाय प्रेसिंग दैट वर्ड। मुत्तकीन, द गॉड कॉन्शियस पीपल। A guidance for the God conscious. Okay. He is in, preposition in. So in this ayah, you are finding two prepositions. One is fi, another one is li. Fi, the meaning of fi is in, li is for. तो देखिए ये गाइडेंस है, दिस इज द बुक ऑफ गाइडेंस, देयर इज नो डाउट इन इट। तो गॉड कॉन्शियस पीपल के लिए दिस इज द बुक ऑफ गाइडेंस, ओके। जो तुम मांग रहे थे सूरह फातिहा में, they were asking for that hidayah, for the guidance, तो Allah subhanahu wa ta'ala has given you the whole book. Surah al-Fatiha is a small Quran, small version of the Quran. This whole of the Quran is the bigger portion of the Quran, bigger version of the Quran. Two Qurans are there. Surah al-Fatiha in itself is small Quran, Quranul Azim जिसको कहा जाता है। तो यू नो कि हर नेकी की बुनियाद किस पर होती है? तकवे पर होती है। तो हर नेकी की बुनियाद क्या होता है? टू अडॉप्ट तकवा, टू हैव गॉड कॉन्शियसनेस। नाउ आयत नंबर 1 और 2 को हम देखेंगे थोड़ा, उसके बाद आयत नंबर 3 की तरफ चलेंगे। आयत नंबर 1 में आपने देखा कि मुक़त्तआत, क़ाफ हेवी लेटर, ता हेवी लेटर, मुक़त्तआत, हुरूफुल मुक़त्तआत। हुरूफुल मुक़त्तआत क्या है, इनके बारे में मुफस्सिर इमाम मुजाहिद बयान करते हैं कि इसका कोई अपना माना नहीं है। There is no meaning in itself. उनका कोई खुद से माना नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनका कोई माना नहीं बताया, तो हम अपने पास से कोई तर्जुमा, कोई ट्रांसलेशन नहीं कर सकते इन हुरूफुल मुक़त्तआत के बारे में। Okay, but then also we have to read this disjointed letter separately. हर्फ लेटर को पढ़ते वक्त हमको अजर, जो उसका अजर मिलेगा उसको याद रखना है। अलिफ कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 10 पॉइंट्स। लैम
10 points. अजर को याद रखिए, अजर इज द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड को याद रखिए. Each and every letter of the Quran carries 10 plus points. अब सोचिए, इससे भी दी बेस्ट काम कोई है दुनिया में? इतनी नेकियां जो आपको मिल रही है. ये एक आयत पढ़े तो कितने लेटर्स पढ़ते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10. How many words you are going to read in the Quran या in the ayah? Multiply by 10. तो कितने हो गए? कितने प्लस पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे? इससे भी ज्यादा बेहतरीन काम कोई है दुनिया में? एवरी लेटर काउंट्स. हुरूफ अल मुक़त्तआत बल्कि छोड़ना नहीं है, सही तरीके से प्रोनाउंस करना है. उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ तजवीद रूल्स के वी हैव टू रिसाइट इट. नाउ अनदर वर्ड after huruf al muqatta'at, the first word of the second ayah is dhalika. Why there is dhalika? Why not here it is hadha? So what is the difference between dhalika and hadha? What is the difference between hadha and dhalika? देखेंगे हम अगले स्लाइड में डाल के. तो यहाँ पे किताब के नाम के 3. अब ذَلِكَ الْكِتَابِ, ذَلِكَ is the pointer for things जो होते हैं उनके लिए है ये पॉइंटर. हादा is also a pointer for near objects. Okay, for near. इसमें इशारा जिसको कहते हैं बईद फॉर के लिए. हादा इसमें इशारा पॉइंटर, ओके, फॉर नियर. ये क्यों है इंशाल्लाह बताऊंगी मैं. अब कमिंग टुवर्ड्स द किताब. किताब के 3 रीजंस है कि व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज एड्रेस्ड दिस कुरान एज किताब. नंबर 1 इज दिस बुक, या that book that is very far in the lawh mahfuz, in the great tablets, वहां पे लिखी हुई रखी है ये किताब. नंबर 1 point. Number 2, why here it is dhalika? Why Allah subhanahu wa ta'ala is addressing here dhalika? Because it is very far in the lawh mahfuz. और उन किताबों में भी लिखी हुई है जो फरिश्तों के हाथों में है. And also it has been written in those books which are in the hands of the angels. Those books in the hands of angels. Number 2 point. Number 3, उन सहीफों में भी, उन पेजेस में भी, उन स्क्रोल्स में भी लिखी हुई है जो हमारे हाथों में, जो तुम थामे हुए हो, तुम्हारे हाथों में जो किताब है अब वो मुसहफ तुम्हारे हाथों में है या तुमने कहीं उठाकर बाजू रख दिया है. So that's why ऐसे भी कह सकते हैं आप कि this is that book, this is that book, ऐसे भी कह सकते हैं आप. ذَلِكَ is a pointer to point something. This word is used for 4 things. Okay, 2 types of ذَلِكَ होता है अल्हम्दुलिल्लाह. तो क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, why Allah subhanahu wa ta'ala has put here ذَلِكَ by not hadha? तो ये जो कुरान है लौह महफूज में, the Quran in the लौह महफूज, the Quran is a part of that book which is well preserved in the sacred tablets. Okay, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाँ है. Okay, अपनी जात के एतबार से वो बहुत दूर है. लौह महफूज, it is near or very far. Quran is a part of the lawh mahfuz. Oh, according to the greatness, according to the special qualities of that book, this blessed book, इसकी मैग्निफिशेंसी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ालिका इस्तेमाल किया है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला has used ज़ालिका. तो अब आप देखिए, मैंने एक तो कहा जात के एतबार से और मर्तबे के. मर्तबा इज द अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल क्वालिटीज एक्सेट्रा. तो कौन से एतबार से इस्तेमाल किया? तो यू कैन ट्रांसलेट लाइक दिस आल्सो, दिस बुक, यानी कि दैट बुक इज दिस बुक, या दिस इज दैट बुक. ला रैब फी, ला रैब फी. ये किताब को ये उसके एग्जाम्पल के लिए आयत मैंने डाली है अल्हम्दुलिल्लाह.
So this is that book. No, there is no doubt in it. La is no, ya not. Harf of negation, particle of negation, no. Raiba is doubt. Doubt is again of two types. A doubt that makes a person restless. ऐसा शक कि जो इंसान को रेस्टलेस कर दे, इंसान को बेचैन कर दे, बेकरार कर दे, ऐसा कोई डाउट नहीं है कुरान में. ऐसा भी डाउट नहीं है कुरान में, इस किताब में, that gives a person mental unrest. A doubt that makes a person restless, or raiba is that type of doubt a person that doubt gives a person mental unrest. दोनों तरीके का, there is no any type of doubt. ही in it. Okay? तो कहने का मतलब क्या है? That it is from Allah subhanahu wa ta'ala, that's why there is no doubt in it, and there is no doubt in it in this book. It is from Allah subhanahu wa ta'ala. You will not find any type of doubt in this book. ऐसा doubt जो इंसान को restless कर दे. Okay? किताब ला रैब, ذلك الكتاب ला रैब. किताब ये मस्तूर किताब है. मस्तूर किताब इन अरबिक, मस्तूर किताब that is the लिखी हुई चीज, return thing. The meaning of kitab is a return thing that has been returned in लौह महफूज, that is with Allah subhanahu wa ta'ala. वहां पे रखी हुई थी ये किताब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने धीरे धीरे नाजिल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर. So now, whoever comes to Quran to get guidance, अब हिदायत की तरफ आ रही तो हो गया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही in it. हुदल लिल मुत्तक़ीन. In this book you will find, you will have that guidance. Guidance for whom? Guidance for the muttaqin ones. तो हिदायत, एक guidance is of how many types? हिदायत हमने पहले भी पढ़ा था सूरह फातिहा में. हिदायत के two types होती हैं. There are two types of हिदायत. एक तो होती है common हिदायत and one other is the proper हिदायत. ने के proper हिदायत मतलब खास special हिदायत. Common guidance and the special guidance. किसके लिए? दोनों भी किसके लिए? बताओ किसके लिए ही? लिल मुत्तकी. हिदायत आम इज द हिदायतुल इरशाद. ओके? हिदायत खास, पर्टिकुलर खास, स्पेशल हिदायत, that is the hidayat tawfiq. Hidayat tawfiq is from Allah subhanahu wa ta'ala. You may have knowledge, you may have information, you may have direction. ये सब कुछ है आपके पास, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन, बट हाउ टू एक्ट अपॉन दैट नॉलेज, अपॉन दैट इंफॉर्मेशन, हिदायत तौफीक के बगैर आपको ये नहीं मिल सकता. हाउ टू एक्ट अपॉन दैट नॉलेज, हाउ टू एक्ट अपॉन, हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज इन योर लाइव्स, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन इन योर लाइव्स. So that is hidayat tawfiq, that is only and only from Allah subhanahu wa ta'ala. So now, this type of guidance, both type of guidance, hidayat tawfiq and hidayatul irshad, for whom? For the muttaqeen ones, lil muttaqeen, for the God conscious people. So who are the muttaqeen? मुत्तकीन से मुराद कौन लोग हैं? मुत्तकीन वो होते हैं जो बच बच कर जिंदगी गुजारते हैं, और मुत्तकी वो लोग होते हैं जो मशकूक चीज को तरक कर देते हैं, छोड़ देते. मशकूक चीज आई, डाउटफुल थिंग्स को, दे लीव द डाउटफुल थिंग्स. ओके? बहुत ही बच बच कर चलते हैं. कुरान गुमराही से बचने का जरिया बताता है कि फमन इत्तबा हुदाया फला युदिल्लु वला यशका. ना वो गुमराह होगा, जिस किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये टू टाइप्स ऑफ हिदायत दे देगा, वो कभी गुमराह भी नहीं होगा. It does not go astray, and वो मुसीबत में भी नहीं पड़ेगा. वला यशका, मुसीबत में भी नहीं पड़ेगा. ओके? तो अब ये बात सुनकर सोचें आप
क्या वाकई हम अल्लाह की नाराजगी से यानी कि बचना चाहते हैं? वाकई क्या डू वी वांट, ऑल ऑफ अस, में सबसे से क्वेश्चन है, डू वी वांट टू डिसप्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला? डू वी वांट टू अपसेट अल्लाह सुब्हानहू व तआला by not getting this hidayah, हिदायत इरशाद और हिदायत तौफीक? अब हम कुरान को छोड़े बैठे ही सिर्फ दुनिया का एजुकेशन ले रही है, वेल एंड फिट, ओके, इट इज वेरी गुड। उसके साथ कि हमको हिदायत तौफीक नहीं लेना है, इसके बारे में हमको नहीं जानना है, इसका इल्म हमको हासिल नहीं करना है, कि इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस हिदायत तौफीक या हिदाया, तो हम वी आर गोइंग टू डिसप्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी आर गोइंग टू अपसेट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो व्हाट इज मुत्तकी? मुत्तकी होता है विकाया, विकाया से डिराइव्ड लेटर है। द मीनिंग ऑफ विकाया इज ढाल, दैट इज द शील्ड। तो सो तकवा इज टू टेक द शील्ड, टू टेक प्रोटेक्शन। अभी मैंने कहा बच बच कर चलना, टू टेक प्रोटेक्शन, टू सेव वन सेल्फ, टू गार्ड वन सेल्फ। दीज आर द फोर मीनिंग्स ऑफ विकाया, जिससे बनता है लफ्ज मुत्तकीन। ओके, जो मुत्तकी होता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम मानकर अपने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराजगी और जहन्नुम के बीच में शील्ड पैदा कर लेता है। अपने और अल्लाह के जहन्नुम के दरमियान क्या बना लेता है? एक शील्ड सा बना लेता है। शील्ड कैसे बनती है? विद द कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। They protect themselves. The muttaqeen ones, they protect themselves from the hellfire, from the fire, by saving themselves from the sins. अभी ये जो उर्दू में डाला गया वही है इंग्लिश में। And one more thing, कि they fulfill their obligations. By fulfilling their obligation, they will make a shield against the hellfire. Okay? So now what is wiqaya? What is the taqwa? हराम कामों से बचना, नंबर 1। फराइज की अदायगी में, यानी कि फुलफिलिंग देयर ऑब्लिगेशन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को डिस्प्लीज करने से बचना है, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाना है, टू सेव फ्रॉम द हेलफायर। दीज 4 पॉइंट्स आर देयर इन द तक़वा और विकाया और मुत्तकी। ओके, तो नाउ उसको छोड़ दिया। Another meaning, yeah, another ayat is there, ayat number 3 of the Surah Al-Baqarah. अब हमने पढ़ा, just we have read के हुदल लिल मुत्तकीन, guidance is for the muttaqin. Who are those muttaqin people? We have just we are trying to understand the meaning of muttaqi ones. Now, who are those muttaqin ones? What are the qualities of those muttaqin ones? So ayat number 3 is going to tell us about the qualities of the muttaqin ones. Alladhina, those who. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Alladhi, those who, the one who. Okay, yu'minuna, they believe. Be, देखिए, alladhina, those who. Singular is alladhi, plural is alladhina. Those who, क्योंकि muttaqin is plural, that's why here it is alladhina. Yu'minuna, again plural. They believe. Be, preposition in. Ghaibi, the unseen. Wa, and, और. युकीमूना, they establish. वो कायम करते हैं अस्सलात। तो नंबर 1 क्वालिटी क्या है? The number 1 quality of muttaqin, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat is the second quality. Now coming toward the yu'minun. What is this yu'minun? मैंने yu'minun नहीं पढ़ा, मैंने एक jerking sound, मैंने पढ़ा yu'minuna। amana is the root letter है उसका, u is the prefix है, una is the suffix है। see here, युमिनूना, यु आता है तो दे,
जो भी लेटर के आगे या आता है, यू आती है, या विद फथा या विद दोमा आती है, तो द मीनिंग इज दे बिलीव। अमना इज टू बिलीव, दे बिलीव। ओके, युकीमून, फिर अगेन युमिनून, युमिनून, युकीमून, 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 फिर अगेन यहाँ पे प्रीफिक्स है यू, सफिक्स क्या है ऊन, ऊन, दे एस्टैब्लिश, मीनिंग। रूट लेटर क्या है युकीमूना का, या निकाल दें आप, ऊना निकाल दें, बचा क्या कयमा, यानी क्या कवमा होता है। ऐसे यहाँ भी देखिए, जस्ट लाइक हियर, यू को ड्रॉप आउट करें, ऊना को आप छोड़े, तो बचा क्या वाव मीम नून, तो वाव इज एक्चुअली इट इज अलीफ, अमना होता है। So to derive the root letters like this. Okay. Mim, another beautiful quality of the muttaqin ones is wa and out. Mimma, min, it is a combination of two words, min plus ma. Min is of, ma is what. Okay. Razaqnahum, razaqna, we have provided, हमने रिस्क दिया, हम उन सबको, them, yunfiqun, they spend. See here, yu'minun, yuqimun, yunfiqun. ओके ओके, क्या भी देखा आपने कैसे आ रहे हैं ये चीजें ये। तो व्हाट इज दिस युमिनूना? युमिनूना का मीनिंग है तस्दीक वल इकरार, तस्दीक भी करना है, इकरार भी करना है, अमना में, ईमान में। Affirm and accept, believing with heart, affirming with tongue, and acting with limbs comes under yu'minun or amana, ईमान, जिससे निकलता है वर्ड ईमान। ईमान में क्या क्या आना चाहिए? ये तीनों चीजें आना चाहिए, दिस थ्री शुड कम इन ईमान। अब हमने युमिनून को देखा, युकीमून को देखा, अब आते हैं हम रज़क़नाहुम की तरफ आते हैं। रज़क़नाहुम, रज़क़ा जिसका रूट लेटर है टू प्रोवाइड, तो रज़क़ना वी हैव प्रोवाइडेड, हुम इज देम, हुम इज देम। रिज़्क़, रिज़्क़न, रिज़्क़ जो आता है आप सभी जानते हैं, रिज़्क़ उर्दू में भी हम इतना बोलते हैं, प्रोविजन। Ar-Razzaq, who is Ar-Razzaq? Allah subhanahu wa ta'ala is Ar-Razzaq, he is the provider. तो रज़क़नाहुम का रूट लेटर हमने देख लिया। युनफिकून, इसका रूट लेटर आता है नून फा क़ाफ, फिर अगेन यू इज द प्रीफिक्स, दिस इज द साइन ऑफ मुदारिउ ने के प्रेजेंट टेंस या एंड फ्यूचर टेंस का साइन होता है। ऊना सफिक्स, इट इज द साइन ऑफ प्लूरलिटी, just like yu'minuna, yunfiquna, they spend। अभी मैंने बताया यू का मीनिंग क्या आता है दे, नफका का मीनिंग टू स्पेंड। ओके ओके क्या भाई? तो नाउ I request Sister Asfia to come. Asfia, are you there? Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'll just do a recap now. एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था सूरह बकरा के बारे में। सो रिसाइटिंग सूरह बकरा, तो उसके बेनिफिट्स हमने देखे थे कुछ। सो कैन एनीवन से कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं? रिसाइटिंग सूरह बकरा, फॉर रिसाइटिंग इट इज अ डैश एंड लीविंग इट इज अ कॉज ऑफ डैश। तो क्या है रिसाइटिंग इट इज अ, आंसर करें आप लोग, माइक खोलें अपने। Am I not audible? It will act as an You're audible. Reciting सूरह सूरह फतह बकरा पढ़ना क्या है, क्या था, क्या है, और उसको छोड़ना किसका बायस बनेगा?
खुद का बायस बनेगा। पूरे ग्रीफ बकरा पढ़ने से बरकत है और उसको छोड़ना अल्लाह की नाराजगी का बायस बनता है, शैतान अल्लाह का की नाराजगी का बायस है। और अल्लाह की magicians नाराजगी। cannot dash it. काउंटर इट, जादूगर उसको क्या नहीं कर सकते? काउंटर इट, काउंटर काउंटर इट, काउंटर काउंटर। ओके काउंटर ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह खैर फॉर रिस्पॉन्डिंग एवरीवन। तो सूरत अल बकरा पढ़ने के 3 फायदे और ना पढ़ने के नुकसानात। तो क़यामत के दिन दफ़ा होगा, फिर इसका हासिल करना बाइस बरकत है और बातिल पुरुस्त इसकी ताकत नहीं रखते, और इसका छोड़ना क्या है, बाइस हसरत बन जाएगा यौम क़यामत के दिन। और या नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब किताब के मानी क्या होता है, जो हमने फर्स्ट आयत में देखा था, सॉरी सेकंड आयत में, आफ्टर द हुरूफ मुक़त्तात जो सेकंड आयत थी, तो उसमें किताब के माना आपको बताया गया था। व्हाट इज इट, कि पढ़ी हुई चीज या लिखी हुई चीज? लिखी हुई पढ़ी जाना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मुत्तकीन के क्वालिटीज अभी देखे, जो हिदायत की किताब है मुत्तकीन के लिए, तो उनके 3 मेन क्वालिटीज थे। तो क्या क्या थे? In ayat number 3. आयत नंबर 3, एक्शन, एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, Qualities. एक्टिंग विद लिम्स, got conscious अल्लाह को नमाज कायम करना, जो रिस्क अल्लाह ने दिया है बिन उसमें गैब से पे ईमान, उसमें से खर्च करो, ईमान लाना, ईमान लाना और नमाज कायम करना हराम कामों से बचना और अपने और और खर्च जो करना रिस्क अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है उससे खर्च जहन्नम करना, से बचना। जो दिया है उसमें से खर्च करना। ओके गैब से ओके, मुराद वो क्या अल्हम्दुलिल्लाह। हकायक होते हैं? What is the definition of गैब? What is the definition of the गैब that is unseen? अनसीन, How do you define that गैब, unseen? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर That is beyond your senses and it is beyond your intellect. इमेजिनेशन, जो होता है अकल से मावरा होता है गैब, जिसको तुम्हारी अकल काम नहीं, उसमें अकल तुम्हारी काम नहीं करती है। तो गैब में क्या कुछ आता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात आती है, तकदीर उमूर आते हैं कि रिसरेक्शन आफ्टर डेथ, द जन्नत एंड दोज़ख वगैरह वगैरह, क़यामत और उसमें पेश आने वाला वाक़यात होते हैं, या क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आपको पेश भी होना है। ये क्या सब गैब में आता है? These all come under the category of गैब। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 ये सब सही है या गलत है? ये सही है, सब सही तमाम all the answers are right. सही है सही है। वयुक़ीमून और अस्सलाह, आंसर्स आर करेक्ट। ओके, वयुक़ीमून अस्सलाह, नमाज जब के बात अस्सलाह के बारे में बात आती है कि they are the people, one of the quality of the मुत्तक़ीन is कि they establish salah. They not only perform the salah but they are going to establish the salah. तो नमाज क्या है? ये ईमान जो युमिनून बिल गैब जो होता है, द अनसीन, द सलाह इज क्या होता है? ईमान बिल गैब की एक प्रैक्टिकल शेप होती है, प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर होता है। और to establish the salah is the part of the iman. Yuqimuna salah. See how they are interconnected with each other. To establish the salah is the part of the iman. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, क्या कुछ आता है? What you will find in the rizq. Rizq, the provision, हर उस चीज का नाम है जिससे तुम फायदा उठाते हो। Example, your wealth, your children, your pleasures of the world, the things of the world, the desires of the world, वो भी उसमें ही आता है। Your health, that is also your risk. Your intellect, that is also your risk. ilm nafi, यानी कि beneficial knowledge is also your risk. Your righteous actions, that is also your risk. And your strength, your quwwat, your taqat, your strength,
your character, okay, your mannerism, that all comes under the category of risk. So Allah subhanahu wa ta'ala has provided you so much with all his blessings, tamam नियमतें, तो ये इनको कहाँ पे खर्च करना है? औलाद को खर्च करना है. You have to spend your औलाद, your children in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Who do they spend on? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Upon themselves, okay, you can spend upon the family, friends, and those who are in need. तो उनके ऊपर भी तुम रिस्क खर्च तुमको करना चाहिए. Okay? Now, ayat number 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. وَالَّذِينَ, wa is and, wa, our, and, الَّذِينَ, those who, الَّذِينَ plural, those who, अभी आपने पढ़ा वल्लज़ीन, युमिनूना भी आपने पढ़ा, युमिनूना they believe, those who believe, be in, ये भी अभी आपने पढ़ा, ma what, unzila, this is new word for you, unzila, another qualities, यानी कि some more qualities of the मुत्तकीन ones के इनके लिए जो हिदायत की किताब दी गई है. Unzila was sent down, unzila nazil ki gayi, ila to, here again this is preposition, just like be preposition, just like that ila is also preposition, ka is the domir or the pronoun you. तुम अपने उंगली को सामने करके बताओ you, तुम. Okay? So unzila, say yu'minuna, you had just read. Okay? Bima, these are the simple words हैं ये, हर्फ हैं. unzila को देखेंगे हम. unzila is a verb. unzila was sent down. Root letter is nun zai lam. To send down or to reveal. What is the meaning of nazala? To reveal or to send down. Wama, wa is and, ma what, unzila, फिर again unzila was sent down, min before, min is from qablika before, ka is you मतलब you, सामने उंगली करके देखें, point out करें उंगली, you, ka is referring to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa and our, be again in, al-akhirati, the hereafter, whom they, yuqinun, they firmly believe, yuqinun. युमिनून हमने पढ़ा, उनजिला भी हमने पढ़ा, अब हमको पढ़ना चाहिए युकिनून के बारे में. ओके, युकिनून फिर सेम जस्ट लाइक युमिनूना, युकिनूना, you is the prefix and una is the suffix. Root letter is ya qaf noon, to firmly believe. This root letter, what is the meaning of this root letter? To firmly believe. Yuqinun, the meaning of you is they firmly believe, they are very certain. Upon what they are very certain? They believe bil akhirah, upon the hereafter. Okay, the meaning of yuqinun, to know something for sure, to be firm, to have certainty, to be sure. See, ये सारे मीनिंग्स को डालकर देखें, आखिरत के ऊपर वो इतने सख्ती के साथ ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं. युकिनून, वो यकीन रखते हैं. ओके, आयत नंबर 4 और 5 मिलाकर कराएंगे हम. युमिनून बिमा उनजिला इलैक, जो बात आई है युमिनून, अभी हम पढ़ लिया, हमने पढ़ा युमिनून दे बिलीव, बिमा इज विथ व्हाट, unzila ilayk, sent down towards you or to you. Okay, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का is referring to Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नाजिल किया गया? Tell me, what has been sent upon Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम?
Al-Quran. कुरान में ही उसके इस आयत की तफसीर आई है। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब, अलैका अपन यू ओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत नाजिल की गई है। तो कुरान has been sent down upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and with Sunnah, the book of hikmah, the book यानी कि hikmat is the ahadith, ahadith के hikmat, that is the Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay, and Quran is the matlu hai, written form hai Quran, कि you are reading, writing, reciting the Quran. This hikmat, that is the ahadith, the Sunnat Rasul, कि इसको हम क्या नहीं करते, इसको कहा जाता है गैर मतलू, that is the Sunnah, that is not written in the form of Quran. Quran has been revealed from Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadith and Sunnat Rasuls also revealed from Allah subhanahu wa ta'ala. But Quran is written form में है हम सबों के पास. We have the Quran in the written form. मतलू मतलब in the written form. गैर मतलू, not in the written form. अभी इसके बारे में देखा जाएगा। अच्छा चलिए मुझे आप ये बताइए कि मुत्तकीन जो किताबें नबियों पर, जो पहले नबियों पर नाजिल हुई, कि those books that have been sent down before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, कि you believe upon all those books, you believe those books, क्या अमल के एतबार से, to act upon those, are you acting upon those books, or you are acting according to the Quran? So we have to act upon the Quran, but ये पिछली किताबें, just like the तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह वगैरह, ये सब किताबें मंसूख हो गई, नलिफाई कर दिया गया है। तो आप मुझे बताएं कि ये कुरान पर अमल करते हैं या सारी पिछली किताबों पर अमल करते हैं? पिछली किताबें हमारे लिए मंसूख है। कुरान पर अमल। Is it right or not? Yes, it is right. हम कुरान पर अमल करते हैं। Okay. मुत्तकियों की पांचवी सिफत कैसी है, कौन सी है? वबिल आखिरती हुम यूक़िनून. That is the fifth characteristic or the quality of the muttaqin ones. That is that they believe in the hereafter. So what is akhirah? What is this akhirah? दुनिया के बाद वाली जिंदगी को आखिरत कहा जाता है। किसको कहते हैं? द हियरआफ्टर लाइफ। हियरआफ्टर लाइफ जो होती है, दैट इज आखिरत। हम सबों को पता है, हर वो चीज जो मरने के बाद हमें नजर आएगी और वो जो वाक़ई हो जाएगी, वो आखिरत कहलाती। अब इन दुनिया देयर इज नो आखिरत, आफ्टर डेथ ओनली देयर इज आखिरत। इतनी बात याद रखें आप। तो क्या हमको इस आखिरत पर यकीन रखना है? क्या we have to believe on this आखिरत? क्या we have to have that conviction upon आखिरत? हमारी इस्लाह हो ही नहीं सकती, हम अपने आप को रिफॉर्म कर ही नहीं सकते जब तक कि हम आखिरत पर यकीन नहीं रखते, आखिरत को सामने रखते हुए काम नहीं करते। ये हमारा ईमान ही मुकम्मिल नहीं होता। इट इज सो इम्पोर्टेंट। यकीन और कन्विक्शन ऐसा कंप्लीट इल्म है, नॉलेज है कि जिसमें अदना सा भी शक ना हो, रत्ती बराबर शक ना हो, छोटे से छोटा शक या रैब ना हो। आखिरत के बारे में किसी इंसान को किसी किस्म का कोई शक या डाउट नहीं हो। ओके, आखिरत के मराहल हैं, कब्र है, कब्र के अंदर की जो कुछ होगा, उसके बाद सूर फूका जाएगा, उसके बाद मौत के बाद दोबारा जी उठना है, आप ये सब जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये जो है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला, तो इस आयत से हमको मुत्तकीन इंसान के बारे में व्हाट डू वी नो अबाउट द मुत्तकीन वन अकॉर्डिंग टू दिस आयत। तो अब आपको ये जवाब देना है कि जो कुरान और हदीस में फर्क नहीं करता, ही इज नॉट द मुत्तकीन वन। मुत्तकीन वन मतलब वो ईमान नहीं रखता। जो पिछली किताबों के यानी कि द ओल्ड बुक्स जो होते हैं, जब बिफोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ऊपर ईमान तो रखना है कि दे आर द होली डिवाइन बुक्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बट वी शुड नॉट एक्ट अपॉन दोज बुक्स।
और आखिरत पर भी यकीन रखना है. These 3 points from the ayat number 4 you are getting. पिछली किताबों का पर नुज़ूल, तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह वगैरह. So now what is the lesson we are getting from this ayah? आखिरत क्या पर लेसन है? आखिरत पर क्या करना है? आखिरत को आखिरत पर सामने यकीन. रखते हुए हमको जिंदगी गुजारनी है. How to live in this dunya? How to live in this dunya without akhirah, without having iman upon akhirah? Can we live? Okay, the last ayat is ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika those, ulaika those, ala on, huda guidance, min from, again preposition, rabbi Lord, him there. Okay, wa and ulaika those. Okay, whom they. Ab whom, him or whom, they are one and the same. Okay, the dhamma or kasra they change according to the word. Okay, whom का मीनिंग भी आपको शायद समझ में आ गया होगा. आला का मीनिंग भी आ गया होगा. I think so. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आया होगा. अब न्यू वर्ड इज अल मुफ्लिहून. अल मुफ्लिहून, the successful ones. Okay, the successful ones. Ulaika is the jama of hada. Hada, the pointer. Ulaika is also a pointer, but it is in plural. Ulaika, ulaika. They are the pointers. Those people. Upon the guidance from their Lord, wa ulaika, and those whom they are the successful ones. Muflihun, take the word muflihun. Fa lam ha is the root letter. Why here it is mu? Why not here it is yuflihun? But here it is muflihun. Meme with dhamma. Meme with dhamma, ये क्या होता है? ये ism होता है. It is a noun. Okay, just like muttaqeen. इन्हें के mu in front of a noun, in front of a word, it describes the qualities of the coming word. It describes the qualities of the coming word. Falaha, the meaning of falaha is to be successful. Muflihun matlab the successful ones. Just like that. Mu'minin ya mu'minun, those who believe. Muttaqin, mu'minin, ये मुंह देखिए ये सिर्फ खून के साथ ही नहीं आता है. Muflihun, muflihin, that is also plural. Mu'minin. Okay, muttaqin. Hudal lil muttaqin. Muttaqin means those who carries the qualities of taqwa. Mu in front of a noun, in front of a word means कि it possesses the qualities of that noun. जो भी noun उसके बाद आता है मुंह के बाद उसके qualities को इख्तियार करता है. मुस्लिमून, अब बताएं मुस्लिमून, the ones who submit is a Muslim. ऐसे ही अल्फाज बोले हम, मुस्लिमून और मुस्लिमीन, मुमिनून और मुमिनीन, मुहसिनून और मुहसिनीन, मुखलिसून और मुखलिसीन. Mu in front of the noun is that carries the qualities of the coming noun. Okay, muflihun, the successful ones. तो so what is success? फलाह क्या है? उर्दू में उसको फलाह कहते हैं. फलाह क्या है? मुफ्लिहून फलाह, जो मतलूबा चीज होती है उसको पाने में कामयाब होना और जिस चीज से डर लगता है उससे नजात पा जाना इज द सक्सेस. ओके, तो मुफ्लिहून कौन होता है? जिस चीज से उसको डर लगता है उससे नजात पा लेता है वो, तो वो अपने आप को सक्सेसफुल समझता है वगैरह. यानी कि आपकी चाहिए चीज, यानी कि मतलूबा चीज को, डिजायर्ड थिंग को जो पा लेता है, दैट इज दैट मैन और वुमन या जो भी होता है दैट इज सक्सेसफुल होता है. तो उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, those who possess the qualities of the iman, yet muttaqin ones, they are the real people, ke they are muflihun, they are the successful ones.
तो now what are the qualities of those people कि they are the मुफ्लिहून? तो उनको क्या कुछ मिलता है? अब बताइए आप, क्या कुछ मिलता है उनको? नूर हिदायत मिलती है, जन्नत मिलती है, द लाइट ऑफ गाइडेंस मिलता है, इनसाइट मिलता है, बसीरत मिलती है, ये विजन मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कामयाबी भी, सक्सेस भी मिलते हैं इन बोथ द वर्ल्ड्स. दोज हु पोसेस द क्वालिटीज ऑफ द मुत्तकीन they will get the success in both the worlds. Okay, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो ये हो गया है अब हमारा. तो अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल किताब थोड़ा सा मुझे 1-2 मिनट देंगे तो मैं करा दूंगी. The book, the Quran is the book that is in the Lawh Mahfuz. Now it is in our hands. So this is that book. In that book there is guidance, there is no doubt. लिल मुत्तकीन के लिए है ये guidance. लिल मुत्तकीन for those conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. इस तरीके से याद रखना है कि ये माइंड मैप को अपने दिमागों में रखें. तो what are the qualities of मुत्तकीन one? आयत नंबर 2 में मुत्तकीन है, तो what are the qualities of the मुत्तकीन ones? आयत नंबर 3 will tell the qualities of the मुत्तकीन ones. Number 1 quality, الذين يؤمنون بالغيب, those who believe in unseen, ويقيمون الصلاة, they establish prayer, ومما رزقناهم ينفقون, and they spend out of what we have provided for them. उसी में से खर्च करते, यहाँ वहां से मांग कर नहीं खर्च करते. उनके पास जो है, उनके पास टैलेंट्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, whatever they have, कि Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon them, has given them, कि they will spend from that. उसके बाद युमिनून बिलगैब मतलब ईमान रखते हैं. युकीमून अस्सलात, that is the इबादत. रज़क़नाहुम युनफिकून, that is the हुकूकुल इबाद. हुकूकुल इबाद is the rights of the people. Who are the muflihun? Those who carry these qualities and they are the successful ones. युमिनून किसके पर रखते हैं? ईमान about what? ईमान किसके पर रखना है? नंबर 1 अल्लाह पर, मलाइका पर, एंजल्स पर, किताबों पर, आसमानी किताबें, द होली डिवाइन बुक्स पर उनका ईमान, मैसेंजर्स पर ईमान, अल-यौमिल आखिर, द लास्ट डे पर ईमान, डिग्री अल कद्र के ऊपर ईमान. तो ईमान इन सबों पर रखना चाहिए. किसी एक को भी वो छोड़ दिया जाए तो ईमान इज इनकम्प्लीट. वो यकीमुन सलाह, सलाह में क्या कुछ आता है? ज़कात आ जाता है, इबादत वर्शिप्स आ जाते हैं, हज, बैत, उम्रा वगैरह वगैरह उसमें आ जाता है, और तुम्हारा सियाम, रोजे रखना भी उसी में आ जाता है. दिस ऑल टाइप्स ऑफ इबादत दे एस्टैब्लिश. और وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, that is the हुकूकुल इबाद, the rights of the people, and they क्या करते हैं? They give the rights of the people. सबसे पहले मी अपने ऊपर खर्च करते हैं, पेरेंट्स पर खर्च करते हैं, स्पाउस पर खर्च करते हैं, कि ज़ौज पर खर्च करते हैं, अपनी औलाद पर खर्च करते हैं, चिल्ड्रन पर, उसके बाद नियरेस्ट किन के ऊपर, उसके बाद ऑर्फन्स पर, नीडी वंस पर, उसके बाद ऑल मैनकाइंड पर खर्च करते हैं, और जो उसमें से और बचा रहता है अदर क्रिएशन पर भी खर्च करते हैं. तो हमको खर्च कहाँ कहाँ पे करना है? सो दिस इज द that one. So ऐसे जो हुकूकुल इबाद, those who give the rights of the people, okay, they spend on all these categories, they are the muflihun ones, they are the successful one. Successful one, fallah, farmer. इसी से derived letter fallah. Fallah का meaning farmer. What does the farmer do? He wakes up early, he prepares for the long day ahead, he softens land, he plants seeds and moves around land to check the progress of seed growth. फिर यहाँ पे नो फिक्स आवर्स, उसके फार्मर के नो फिक्स आवर्स, रिटर्न्स होम लेट. तो ये सारे काम करना है अगर आपको मुफ्लिहून बनना है. इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल स्टूडेंट ऑफ नॉलेज यानी कि स्टूडेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो देन यू हैव टू वर्क लाइक ए फल्लाह, लाइक ए फार्मर. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि ये जो कुछ भी आज हमने मुत्तकीन की क्वालिटीज पढ़ी हैं, इन तमाम क्वालिटीज को समझकर अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने वाला बनाए, इसके ऊपर अमल करने वाला बनाए. आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.
if कुछ you have अनाउंसमेंट्स थी हाँ कुछ I hope